Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru. I often say, Vaheguru से बड़ा कोई मंत्र नहीं है. When you're just saying Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 it can become, it's likely to become monotonous. And you can start asking yourself, what am I speaking? Intellect comes in the way. Why, what are you doing? Mhm. Ram Ram also. Allahu Akbar says, Allah बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है. But Vaheguru doesn't say anything about anyone. It just is Vah, Vah. And this Vah is God actually. Vah. Vah means बस कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहना चाहता भी नहीं, कुछ कहा जा भी नहीं सकता. वाह, वाह. Let me tell you, एक हमारे शास्त्र हैं, उनको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं. प्रस्थान त्रयी. भगवद गीता, वेदांता एंड ब्रह्म सूत्र. हिंदू धर्म. पर के लोग बोलते हैं हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं. ठीक बोलते. हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, कोई सेपरेटिस्ट धर्म नहीं है. फिर बोलेंगे इट्स अ वे ऑफ लाइफ. नो, इट्स फिलॉसफी. हिंदू धर्म सर सनातन धर्म. और फिर सनातन भी तो एक धर्म बन गया. नहीं, सनातन धर्म मीन्स एंशियंट विजडम. एवर सिंस द मैन इज बॉर्न, this is an ancient, unchangeable, irreplaceable wisdom. From this wisdom, from this ancient wisdom, if I use the word Sanatan Dharam, you would still start thinking it's some sect. Sanatan Vidya bol dete. Just like if I say, are you Harijans? You start thinking about some scheduled caste. Harijan means भगवान को जो मानते हैं, भगवान के बंदे हैं, वो हरिजन होते हैं. ऐसे ही सनातन विद्या. सनातन मीन्स एंशियंट मोस्ट, आदि अनादि. सो हिंदू धर्म कोई एक सेक्ट नहीं है. हिंदू धर्म इज ए एंशियंट विजडम ऑफ लाइफ. प्राइमल और प्राइमेवल विजडम ऑफ लाइफ. सो उसके जो शास्त्र हैं, उसमें से सारी दुनिया के धर्म निकलते हैं. वो सागर है जहां से सारे धर्मों ने जन्म लिया. सारी साइकोलॉजी, साइकैट्री, फिलॉसफी ने जन्म लिया. उसमें से ही निकलता है सब कुछ. तो वो उसके जो 3 सोर्स टेक्स्ट हैं, वो ब्रह्म सूत्र है, वेदांत है, एंड ऑफ नॉलेज, वेदांत, एंड ऑफ नॉलेज, एंड भगवद गीता, डिवाइन सॉन्ग sung by Krishna for the benefit of, for that moment Arjun was made a tool to communicate ancient wisdom to the world. So from that has come out every philosophy. A philosophy is what? Which can make you complete. What is the problem about man? Incomplete. Man is always incomplete. He dies always incomplete. He lives incomplete. He dies incomplete. Unsatisfied. Every moment is lived in unsatisfaction, dissatisfaction. And the world around us convinces us that it is our right to be dissatisfied. To be dissatisfied. We should not be satisfied. If we become satisfied, progress will stop. This is what the world teaches us.
Whereas a complete man, a satisfied man, is the embodiment of ultimate progress of life. He is healthy also, he is wealthy also, he is wise also. Healthy, wealthy, wise. All the three things which the world's convictions robs away from you. The world's conviction is that you should never be satisfied. That's what you borrow from the world, that you should never be satisfied. And you continue to keep striving for more, 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 more. But a complete man is always satisfied, and he's healthy also, he's wealthy also, he's wise also. And the world can keep accusing him for various things. As if he's a thief, he's stealing your money, as if. He gets everything from within himself. मत विच रतन जवाहर मानिक, सारी दुनिया के ट्रेजर्स उसके अंदर ही हैं. He doesn't need anything from outside. He is complete. Well, I wanted to share with you Brahma Sutras, and I had begun with Vaheguru. So let's go back, catch the thread. Why Vaheguru is the ultimate mantra, and what is Brahma Sutra? The Prasthan Trai. Let's touch what is Prasthan Trai. Prasthan means what? Prasthan kariye, jaiye, chaliye, jaiye, isn't it? Trai means teen. ये 3 सोर्स टेक्स्ट हैं जो आपको मृत्यु लोक से प्रस्थान करवा के ब्रह्मलोक तक ले जाएंगे. ये 3 source texts of ancient wisdom, not of any sect. Sect means sectarian. India can be a sect, Pakistan can be a sect, country, separate by a boundary. Ancient wisdom is for everybody. So Vaheguru is meant for everybody, because it's not taking the name of anyone, and it is not explaining anyone that he's big or great or anything. It's just saying, wow, I can't say anything. Wow. So now what is Brahma Sutra? Brahma Sutra begins with Athato Brahma Jigyasa. चलो आपको बताएं भगवान क्या होता है. अथतो ब्रह्म जिज्ञासा. तब लोग आपको भ्रम से निकाल के ब्रह्म तक लेके जाए. भ्रम से निकाल के ब्रह्म तक लेके जाए. Let's take you out of illusion and take you to reality. Atato Brahma Jigyasa. Hare Krishna. Hare Ram. Hare Krishna. Krishna. Vaheguru. जन्म आदि अस्य यतः. वो ब्रह्म वो है जिसके अंदर से आपका जन्म हुआ है. आप जन्म आदि, जिसके अंदर आप जी रहे हैं और जिसके अंदर आप लीन हो जाएंगे. डस्ट यू आर, डस्ट यू शैल बी नहीं कहा जा रहा. आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म से निकले हैं और ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे. मगर पता नहीं क्यों आप भ्रम में जीना चाहते. आपने भ्रम को पकड़ के रखा हुआ. आप हैं ब्रह्म, मगर आप भ्रम को पकड़ के रखा हुआ, उसको छोड़ना नहीं चाहते. जन्म आदि अस्य यतः. इसको चतुह सूत्री बोलते हैं. चतुह सूत्री. 4 ही छोटी छोटी लाइनें हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी दुनिया की विजडम खड़ी है. 4 लाइन. 3 सोर्स टेक्स्ट हैं, मैंने बता दिया आपको. वेदांत, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र. एक सनातन विद्या है, एंशिएंट विजडम, उसको कुछ भी बोलो. उसके 3 सोर्स टेक्स्ट हैं जिनको हम प्रस्थान त्रयी बोलते हैं. उसके 4 सूत्र हैं जो फाउंडेशन है फॉर ऑल विजडम ऑफ लाइफ. एंड फिर मैं वाहेगुरु पे आऊंगा.
So it began with Vaheguru, and it told you that there is an ancient wisdom, not sectarian, universal for everybody. उसके 3 सोर्स टेक्स्ट हैं, रिपीटिंग, प्रस्थान त्रयी बोलते हैं, विच कैन टेक यू आउट ऑफ भ्रम टू ब्रह्म. सो उसके 4 सूत्र हैं. सूत्र मतलब श्लोका. Shloka is in a particular meter. Sutra is just a few words, everything said in few words. Everything said in few words. Just like Vaheguru. Everything said. तेरा नाम इतना है मुख्तसर, तेरा जिक्र इतना तवील है. मुख्तसर मतलब इतना छोटा सा नाम है राम, मगर राम कहने से होता क्या है, इतना तवील है कि ओशन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता. ये 4 सूत्र क्या है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्म आदि यस्य यतः, ईक्षते न अशब्दम, एंड तत्तु समन्वयात्. ये 4 सूत्र. अब इन 4 सूत्र में पूरी दुनिया की विजडम छुपी हुई है, जो आपको वाहिगुरु तक ले जाएगी. वेल, क्या सूत्र है? पहला था अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा. चलो आपको बताएं भगवान क्या होता है, गॉड होता क्या है, आपके कृष्ण कौन है, आपके राम कौन है, आपके अल्लाह कौन है, क्या है. चलो आपको बताएं आपका भगवान क्या है. आपका भगवान मीन्स आपका ईश्वर, आपका गुरु क्या है, आपका अपना गुरु क्या है. अथा तो ब्रह्म जिज्ञासु, जन्म आदि अस्य यतः. जो आप बने हुए हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, आपकी सोच विचार, आपके दुख सुख, सब उसी भगवान से निकले हैं, उसी में ही बसे हुए हैं, उसी में ही लीन होते जा रहे हैं. आप बूढ़े बूढ़े नहीं हो रहे हैं, आप मर नहीं रहे, आप उसी में ही लीन हैं, उसी में ही लीन होते जा रहे हैं. You are evolving towards Him only. मम, मुझ में ही, कृष्ण से वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः. जो मनुष्य है वो मुझ में ही लीन होता जा रहा है, मुझ में ही. So if your Krishna is your guru, then Krishna में से ही आप निकले हैं. I'm not saying Krishna necessarily, Allah suppose. Allah is your guru, then Allah से ही आप निकले हैं, अल्लाह में ही लीन होते जा रहे. पंच तत्व ते तन रच्यो, जानो चतुर सुजान, इंटेलेक्चुअल वन, क्लेवर वन, वाइज वन. तुम 5 तत्वों से ही बने हो और 5 तत्वों में ही लीन हो और होते जा रहे हो. आपके अंदर ही आकाश तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, वायु भी है, ठंडक भी है. So, coming back to Brahma Sutras. So, जन्म आदि अस्य यतः अस्य, जिसमें तुम्हारा सब कुछ जो है तुम उसी से ही बने हो. You are made in my image and likeness. Perfect. Bible says so. You are made in my image and likeness. तुम मिट्टी नहीं हो. You are made in my image and likeness. Christ is saying it, not Jesus. Christ is saying it. There's a difference between Jesus and Christ. Jesus is a person. Christ is the power within that person who's speaking. God speaks through a guru, through a form. But God is God, formless. So well, जन्म आदि अस्य यथा, जिसमें से तुम पैदा हुए हो वो भगवान है.
Then the third one is the bombshell. Ikshater na ashabd, which says तुम्हारी इच्छा ही तुमको भगवान के दर्शन दे सकती है, तुम्हारी इच्छा ही भगवान के साक्षात करवा सकती है, तुम्हारी इच्छा ही भगवान है. So God says, when He comes in a human form, talks to you, that I have got only one handicap, and that is that I cannot open the doors of your इच्छा. आप जब तक मुझे नहीं मांगेंगे तब तक मैं सामने नहीं आ सकता, और मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप मुझे मांगो. जिस दिन आप भगवान को मांगना शुरू कर देंगे कि मुझे भगवान तुम चाहिए, उस दिन भगवान सामने आके खड़ा हो जाए. मैं फोर्स नहीं कर सकता. आई कैन नॉट फोर्स यू टू लव मी. टू लव मी और नॉट टू लव मी इज योर फ्री विल. जब मैंने ये सृष्टि बनाई, जब मैंने ये इल्यूशन बनाई, जब मैंने ये माया बनाई, तो आप ही को एक फ्री विल दे दी कि कब आप चाहोगे कि मैं मायाधीश के दर्शन करना चाहता हूं. सो भगवान के पास ये विल, इंडिपेंडेंट विल नहीं है कि वो आपको फोर्स करे कि आप मुझे प्रेम करो. वो कुछ भी कर लेगा, वो आदमी भी बन के आ जाएगा, वो गुरु भी बन के आ जाएगा, मगर फोर्स नहीं कर सकता. आपको सारे ब्रह्म सूत्र पढ़ा देगा. ब्रह्म सूत्र पढ़ने के बाद आपको लगेगा आपको भगवान समझ आ गया. जिस दिन समझ आ गया भगवान, उस दिन वो भगवान ना रहेगा. जिस दिन भगवान समझ आ गया, उस दिन वो भगवान नहीं होगा. जो चीज समझ आ गई वो भगवान नहीं हो सकती. सो अगर आप भगवान को कृष्णा समझेंगे तो कृष्णा की तो कहानियां पढ़ लेंगे आप. आपको कृष्णा समझ आना शुरू हो जाएगा. फिर तो वो कृष्णा ना रह जाएगा. अगर आप अल्लाह को बहुत बड़ा मान लेंगे, सागर से भी बड़ा, सृष्टि से भी बड़ा, मगर है तो अभी बड़ा ही ना, तो वो अल्लाह ना होगा. पर जब आपके अंदर से वाह निकलेगी तो बस वो भगवान होगा. वाह का मतलब तुमको समझा तो नहीं जा सकता, एक्सपीरियंस किया जा सकता है. सो जब भी वो किसी आदमी का रूप लेके आता है, कृष्णा का रूप लेके आता है, तो ये नहीं कि वो अपने आप को समझता है. बस वो एक मस्ती है, उसको समझ नहीं है कि ये मस्ती क्यों है. वो भी अपने आप को नहीं समझता, बस एक मस्ती है. और उस मस्ती को कहता है मिलन की मस्ती. भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए. प्रेम की मस्ती है वो प्रेम है. देन वी से गॉड इज लव. यस, गॉड इज लव, बट कैन लव बी अंडरस्टूड? लव इज द ओनली थिंग विच कैन नेवर बी अंडरस्टूड. लव कैन बी एक्सपीरियंस्ड ओनली. जिस दिन आपको प्रेम समझ आना शुरू हो जाएगा, वो प्रेम ना कहलाएगा. प्रेम तो एक रस है. प्रेम एक जिंदगी का रस है. इंटेलेक्चुअली मैं आपसे बातें कर रहा हूं. इंटेलेक्चुअली आप प्रेम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ज्ञान योग बोल सकते हो. मगर समझ जब नहीं आएगा और मजा आना शुरू हो जाएगा, तो वो सिद्धि होगी योग की. ज्ञान योग तो एक प्रैक्टिस है, एक साधना है.
मगर जिस दिन वाहे गुरु निकलेगी, उस दिन आप समझ से परे जा चुके हो। फिर वेदांत हो चुका हो, क्योंकि देन आप कोशिश भी करनी बंद कर दोगे कि समझ उमझ तो आ नहीं सकता, बस वाहे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मगर कुछ हो तो क्या है, ये नहीं पता क्या हो गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। बस आपकी बात बन जाएगी, जो कि बात नहीं बन रही थी वो बात बन जाएगी। फिर उसके बाद जानने को रह क्या गया? जब बात ही बन गई, फिर जानने को क्या रह गया? फिर वेदांत हो गया। वेदांत का मतलब अब जानने को कुछ ना रह गया। मैंने जो कुछ भी मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो चाहा मिल गया। हो गई प्यार की हर तमन्ना जवां। हरे कृष्णा। फिर कोई पूछेगा कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, आपको ना पता हो, उसको क्या बोल दें? तुरीय। जिनने ये शब्द सुना होगा, तुरीय। जो नॉर्मल वर्ल्डली लिविंग है, इसमें 3 स्टेट्स हैं ऑफ लिविंग। एक ड्रीम स्लीप है, एक डीप स्लीप है, एक वेकफुलनेस है। मगर उस स्थिति में आप तीनों से परे जा चुके हो। फिर ना आप जाग रहे होंगे ना आप सो रहे होंगे। उसको बोलते हैं तुरीय। हरे कृष्ण। फिर वो आनंद जो है, ना जन्म लेगा ना मृत्यु होगी, वो तो हमेशा ही है। हमेशा ही है, वो जन्म थोड़ा लेता है भगवान, ना वो मरता है कभी, वो तो ऑलवेज है। सो नूर की बूंद है जो सदियों से बहा करती है, वो प्रेम है, वो भगवान है। प्रेम करके तो देखो, करा तो नहीं जा सकता। प्रेम होने तो दो। हाँ, हो सकता है, करा नहीं जा सकता। ये कोई काम नहीं है जो करा जाए, ये हो जाएगा। जब हो जाएगा तो बस बोलने को कुछ रह ना जाएगा। ये खामोशियां, ये तन्हाइयां, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवान। जो मोहब्बत की दुनिया है, एक चाहत देश है, एक ब्रह्मलोक है। आओ तुम्हें मैं लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो। एक है ऐसी दुनिया, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। जिस भ्रम लोक में हम रहते हैं, वो इमेजिनेशन है। ब्रह्मलोक इमेजिनेशन नहीं है। सच खंड अगर कोई है तो दूसरे खंड को क्या बोलेंगे? झूठ खंड। जिसमें हम रह रहे हैं, जो दिल मांगे मोर मोर मोर, और ऑलवेज डिससेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड, ये समझना वो जानना, ये करना वो करना, ये इल्यूशन है। जब आप तुरीय स्थिति में पहुंचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सब सुपना है। ये सुपना सोवत नहीं जानने। ये जो कुछ भी आपका रिश्तेदारियां हैं, जो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, इसके परे हैं आप। बट प्रवृत्ति नरवृत्ति पछाणे, दोनों ही करनी है। फॉर्मेलिटीज भी करनी है, जिंदगी भी जीनी है। मगर ये जीने को जीना नहीं कहते लल्लू। ये जीना भी कोई जीना है। जीना तो ब्रह्मलोक में ही है।
चाहत देश में ही है। हरे राम, हरे कृष्णा, वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु।